doing your sessions and covering your syllabus with me. So let's start another session from Unit 9, and this is your practice of UGC NET going on. Topic from Unit 9 for today is Constitutional Amendments for GST. Recently we started this topic. Those who have joined right now, GST is related, I have done the very first session. On the top you can see the link where I explained what actually this GST stands for what, and where this GST is applied, how many kind of taxes it has subsumed and how many it has replaced, where and in at what stages it is applied, whether it is for central level or state level. We done all that. And also in the very last session, again on the top you can see the link, I explained about the genesis of GST, like how GST took that birth in India and what are the stages, and year by year how the time has passed and what were the major changes done to brought this GST into existence. Right now we will cover what were the major constitutional amendments for GST, how the changes were done in constitution to bring this into existence, why this is so important. So listen it carefully, and this session is going to give you a lot of information today. This is our official mail address, students, and this is our contact number. If you have any query, any doubt, you want our notes or any topic related questions, MCQs for practice, more and more MCQs. Although I am just started the playlist of MCQs जिसका लिंक आपको टॉप पर दिख भी रहा है, जहाँ पर हम वेरियस सेट्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस. आप इस प्लेलिस्ट पे जाइए और अपने सेशंस कवर कीजिए. मोर इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस देन यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2016, जिसको हम 101 अमेंडमेंट एक्ट भी बोलते हैं. सो इस कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में क्या था? इट वॉज इनेक्टेड ऑन 8th of September 2016 जब जीएसटी लागू किया गया. एंड इस टाइम पर जब जीएसटी को लाने के लिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज तो लाना पड़ेगा, तो हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, लॉ मेकर्स ने क्या क्या चेंजेस किए. सो द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट चेंजेस और अमेंडमेंट्स वर डन. Firstly, concurrent power on parliament and state legislature to make the laws for imposing taxes on goods and services. मेजर थिंग की गई थी कि पावर जो थी वो पार्लियामेंट बेसिस पर और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को दे दी गई थी कि आप पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल लेवल पर टैक्स रेट को संभालेगा और स्टेट लेवल पर स्टेट लेजिस्लेचर्स का काम है कि वो स्टेट जो टैक्स कैसे इम्पोज करना है, कैसे कलेक्ट करना है, इससे रिलेटेड अपने रूल्स बनाए. Now this GST will be levied on all the supply of goods and services except what? सारे गुड सर्विसेज पर GST लगेगा, लागू होगा, लेकिन सिर्फ एक एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन जो है उस पर GST नहीं लगेगा. एल्कोहलिक लीकर पर ये उस टाइम पर चेंजेस किए गए. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक द लॉज विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑफ इंटर स्टेट. मीन्स अब यहाँ पर हमने देख लिया स्टेट लेवल पर तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम है, मीन स्टेट गवर्नमेंट का काम है. सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट का काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है टैक्सेस को इम्पोज कैसे करना है. बट व्हाट और who will have the power if the trade is done between two states? फॉर एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश से प्रोडक्ट्स जो हैं वो हरियाणा आ रहे हैं, या हरियाणा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एमपी में जा रहे हैं. तो जो इंटर स्टेट ट्रेड होगा, इंटर स्टेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी, यहाँ पर पावर किसके पास थी? सो दिस पावर वॉज ऑल्सो गिवन एट द सेंट्रल लेवल, दैट इज पार्लियामेंट, टू मेक द रूल्स रिगार्डिंग हाउ द टैक्स will be imposed on the interstate trade. Interstate trade again from one state to another state, supply या purchase जो होता है. Done. Next, Parliament shall decide the principles for determining the place of supply and when the supply takes place in course of interstate trade and commerce. ये सब पार्लियामेंट की ड्यूटी है कि कैसे कैसे कहाँ पर सामान जाएगा, कहाँ पर कलेक्ट होगा, उसके रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन, एंड देन उनको टैक्स कहाँ पर पे करना है, कौन सी स्टेट टैक्स को कलेक्ट करेगी, या वो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में आएगा. So the explanation to Article 269A of Constitution of India. Remember this Article 269A of Constitution of India provides that the import of goods and services
will be deemed as supply taking place in course of interstate trade and commerce. जब आप बाहर से कोई भी प्रोडक्ट खरीद के अपनी स्टेट में ला रहे हो तो इसका मतलब वो एक इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स है. उस पर जो जीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, उस पर जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी. And for the following items, central excise duty will be imposed on their production. ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन के टाइम पर ही इम्पोज हो जाएगी. ऑल्दो हमने कहा है कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर जीएसटी लगता है, मीन्स कंजप्शन प्लेस पर जीएसटी लगता है, बट ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये प्रोड्यूस होंगे, प्रोडक्शन के टाइम पर ही इनको सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करनी है. एंड रिस्पेक्टिव जो भी स्टेट है जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है, दे विल इम्पोज सेल्स टैक्स ऑल्सो ऑन देयर सेल्स. जब इनकी सेल्स स्टार्ट होगी तो सेल्स टैक्स भी लगाना है. तो ये प्रोडक्ट कौन से हुए? पेट्रोलियम क्रूड इन क्रूड फॉर्म, क्योंकि मोटर स्पिरिट फॉर्म उसको हम पेट्रोल बोलते हैं. देन हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. तो ये 6 कैटेगरीज बनाई गई थी जहाँ पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेल्स टैक्स लगेगा. Then next amendment we can say, ये above जो थी 269A था, now it's article 279A. ये भी एक चेंज आया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, that empowers the president of India to constitute GST council. ये प्रेसिडेंट को पावर दी गई थी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल मेक और क्रिएट एक जीएसटी काउंसिल बनाए, और उस जीएसटी काउंसिल में जो मेंबर्स होंगे उनकी चेयरमैनशिप होगी ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर उसको चेयरमैनशिप करेंगे, लाइक राइट नाउ वी हैव निर्मला सीतारमन. एंड इस जीएसटी काउंसिल का काम होगा टू रिकमेंड अबाउट कि कितना जीएसटी रेट होना चाहिए. जीएसटी रेट भी तो साल दर साल चेंज होता है. इसी काउंसिल का काम होगा कि वो डिसाइड करे वैल्यूएशन एंड अदर फंडामेंटल रूल्स रिगार्डिंग दिस जीएसटी. देन एग्जम्पशन कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट डालने हैं कि इन कैटेगरीज पर जीएसटी की छूट है, जीएसटी नहीं लगेगा. फ्यूचर चेंजेस क्या क्या आने चाहिए ये भी रिकमेंड जीएसटी काउंसिल का काम करना है. देन रिटर्न कितना होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है जीएसटी में, जीएसटी पे करते हुए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा. सो दीज वर द मेजर चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए फॉर जस्ट टू अडॉप्ट द परफेक्ट काइंड ऑफ टैक्स इन इंडिया. After then, I hope you understood when I explained about the introduction of GST that in India we have dual aspect of GST. ड्यूल मीन्स कि जीएसटी जो है वो 2 प्लेसेस पर लगेगा, एक सिंगल जीएसटी नहीं है. सो ड्यूल जीएसटी इज अप्रोप्रिएटली अलाइंड विद कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको चेंज लाया गया, बिकॉज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, वी हैव फेडरलिज्म काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एंड इन इंडिया बोथ द सेंटर एंड द स्टेट हैव बीन असाइंड द पावर टू लिवाई एंड कलेक्ट टैक्सेस थ्रू अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन. मीन सेंटर को भी अथॉरिटी दी गई, आप सेंट्रल लेवल पर जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं. सेम वे स्टेट लेवल के पास भी ये पावर थी टू अप्लाई दिस जीएसटी. they have the power to go for the levy and collection. Now 3 new taxes introduce किए गए थे, replacing किस किस को, सेंट्रल एक्साइज टैक्स रिप्लेस कर दिया. अब कोई सेंट्रल एक्साइज टैक्स नहीं होगा, कोई सर्विस टैक्स नहीं होगा और कोई वैल्यू एडिड टैक्स नहीं होगा, जिसको हम सेंट्रल सेल्स टैक्स कहते हैं. चारों टैक्सेस रिप्लेस किए गए और इनकी जगह जो ड्यूअल जीएसटी फॉर्म है वो क्या है, एक स्टेट जीएसटी collected by state government, central GST collected by central government, and the integrated GST that is also collected by central government, जिसको हम interstate GST भी बोल देते हैं. ओके, अगर आपको क्वेश्चन आता है ड्यूअल GST, so you should now be well aware of this term, and because we have now federal country, we have this application of GST at both the levels, central as well as state level. So with this, students, I end up this session. In next session, we will meet with another topic. Till then, keep watching, keep sharing. These are the ways through which you can connect to us. Follow us on these ways. Don't forget to subscribe. Have a nice day. Thank you.